As we have discussed about saliva in the last class, why do we make saliva? The answer of this question you know very well. We discussed about the salivary gland. There are three pair of salivary glands. Its nature are exocrine. Exocrine means the gland which have duct. The gland which have duct and their secretion by the duct is secreted nearby area. Like all the salivary glands are exocrine in nature. The three pair of salivary glands named as the parotid gland. Number one is a parotid gland. Number two is a sublingual gland. And number three is a submandibular gland. And as you know very well, we will discuss about parotid gland, sublingual gland, and submandibular gland. Here are three pair of salivary gland. First one is a parotid gland, and second one is a submandibular gland, and third one is a sublingual gland. And the respective duct which is arises from the parotid gland is known as the duct of parotid gland. Duct of parotid gland. The sublingual gland, the duct which is arises from the sublingual gland is known as the duct of sublingual gland or duct of Ravenous or duct of Bartholin. And the third one is a submandibular gland and duct is known as the submandibular duct or also known as the Wharton's duct. Here we have to discuss about the parotid gland. The parotid gland, as we discussed earlier, it is the largest salivary gland and it is the presence between the zygomatic bone, that is the cheekbone, and the earlobe. This is the zygomatic bone, this is the cheekbone, and this one is the earlobe. In between the zygomatic bone and earlobe, here, this is the place of parotid gland. This is the place of parotid gland, and the duct of parotid gland, which is called the Stenson's duct, is open near the upper second molar. Is it clear? Upper second molar. The Stenson's duct open near the upper second molar. And the inflammation here is written as the Gulsua, that is the mumps. This is the inflammation of the parotid gland. It is also called the parotiditis. Here present between the zygomatic bone, that is the cheekbone, and earlobe, or near the external auditory canal. This is the external auditory canal. You can see the whole of ear. This is known as the external auditory canal or external auditory meter. The parotid gland secretion contributes about the 20% of the total secretion of the saliva. And the enzyme which is known as the salivary amylase, also known as the ptyalin enzyme. Salivary amylase also known as the ptyalin enzyme. And the maximum amount of ptyalin or maximum amount of salivary amylase is contributed by the parotid gland. In the need, the question is arises like we discussed that the duct of parotid gland is called the Stenson's duct, which opens near the upper second molar. And the inflammation of the parotid gland is called the mumps, and this mumps is known as the parotiditis, and it is caused by the virus. Hence, the mumps is the viral disease. Mumps is the viral disease. I hope this is absolutely clear. Now, we can easily draw this on your notebook. This one is the anterior part which represents the mouth, and here is a tongue. Here is a tongue. Here is a tongue. Here is a tongue. This is the tongue. This is the anterior part of the tongue. This is the posterior part of the tongue. This one represents the upper jaw. This represents the lower jaw. You know, this is the parotid gland.
between the zygomatic bone and the earlobe, and the duct is known as the Stensen's duct. Duct is known as the Stensen's duct, which opens the near the upper second molar of the jaw. Is it fine? And this represents the maxilla. Upper jaw is known as the maxilla. You have to know beta. Upper jaw is known as the maxilla and lower jaw is known as the mandible. Hence, the duct which is present beneath the mandible, below the mandible, is known as the submandibular gland. Submandibular gland, and the gland which is present below the lung, below the tongue, called the sublingual gland. Sublingual gland. So please draw it at your notebook. Then I'll proceed. Lakshmi, Anya, बेटा इसको ड्रॉ करो जल्दी से. ये तो अभी कल वाली बातें ही हैं. हिमांशु वर्मा, अरे रिस्पॉन्स दो यार, रिस्पॉन्स दो. हाँ सर, ये डायग्राम बना आपका, थोड़ा रह गया है बस. जल्दी से बनाओ ये डायग्राम. सारे बच्चे डायग्राम बनाओ. और आन्या, कैमरा ऑन करो बेटा जल्दी से. हाँ, मैं ऋषभ यादव. इधर देखो यार, तुम इधर देखो. भाई इधर देखो, इधर हमारी तरफ देखो. तुम तो रुक गए. इधर देखो, ये तुम्हारा माउथ. ध्यान से देखना हमारी तरफ, सभी लोग ये देखो. ये तुम्हारा माउथ है, ये तुम्हारी जबान है, इसको हम क्या बोले, टंग. इसको हमने कहा ये हमारी टंग है. ठीक है. ये अपर जॉ, समझ रहे हो ना, ये अपर जॉ दिख रहा है, ये आपका अपर जॉ. ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका लोअर जॉ. ये आपका लोअर जॉ. ये 3 ग्लैंड्स हमने आपको दिखाया. ये एक साइड को दिखा रहा है, ये एक साइड को दिखा रहा है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन साइड को. वन साइड इधर है. मतलब अगर 1 2 3 आपको यहाँ दिख रहा है तो 3 इस तरफ भी होगा. 3 और 3 6. समझ में आ रही बात? 3 और 3 6. इसका मतलब 3 पेयर. इसका मतलब 3 पेयर. तो जैसे मैंने तुमसे पूछा था व्हाई डू वी मेक सलाइवा, तो बच्चे ने जवाब क्या दिया, गुब्बारा बनाने के लिए. बेटा एक चीज याद रखना, खाना जो हम खाते हैं, ऋषभ इधर देखो हमारी तरफ. मैंने 1000 बार बोला है मेरी तरफ देखो. मैं नहीं अच्छा लग रहा तो इसको देखो, ये स्लाइड देखो, ये बहुत अच्छी है, रंग बिरंगी है. ठीक है, इसकी तरफ ध्यान दो बेटा. आपका ये जो सलाइवा है, सुनना काम की बात, ये जो सलाइवा आपका है, तो जब आपके सलाइवा में, क्या कहा मैंने, जब आपके सलाइवा में आपका खाना मिक्स होता है, आपके सलाइवा में आपका खाना मिक्स होता है, तब इस खाने को हम कहते हैं बोलस. समझ में आई बात? इस खाने को हम क्या बोलते हैं, बोलस. जब तक आपका खाना, चाहे वो आपके हाथ में मटर पनीर हो, चाहे आपके हाथ में रोटी हो, चाहे आपके हाथ में चिकन तंदूरी हो, चिकन कढ़ाई हो, कुछ भी हो, वट एवर, आपके हाथ में जो है वो आपका खाना है. लेकिन जैसे ही वो खाना आपके सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, आपने मुंह में लेकर के उसको चबाना शुरू किया, चबाने के बाद उसकी गोल सी एक लेई ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, लुगदी जिसको हम बोलते हैं. लुगदी को इंग्लिश में कहते हैं बोलर. क्या बोलते हैं, बोलर. ठीक है. तो
अब ये बोलस जो होता है, इस बोलस में जो आपका खाने के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब के साथ हमारा सलाइवा मिक्स हो गया है। और स्पेशली मैं बता दूं कि ये जो एंजाइम आपने देखा, कौन सा एंजाइम, ये एंजाइम जो आपने देखा टाइलिन, जिसको हमने कहा सेलेवरी एमाइलेज, और इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नीट का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है कि डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट फ्रॉम, फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। कहाँ से स्टार्ट होता है? लिख लिया करो यार, लिख लिया करो, हर चीज मैं नहीं लिखूंगा, लिख लिया करो इसको फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज द टाइलिन और सेलेवरी एमाइलेज। क्या बोलेंगे इसको? सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम की मदद से। अच्छा, एक सवाल आप हमें और बताइए, कभी ध्यान से देखा है, हमें चोट लग जाती है तो जहां अगर हाथ पे चोट लगी तुरंत हम अपना हाथ अपने मुंह में डाल देते हैं, ऐसा होता है? आपके साथ हुआ है? जो ओवर सोफिस्टिकेटेड पर्सन होते हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हाँ हम लोगों के साथ में भाई बड़ा कॉमन सा आदमी हमारे साथ हो जाता है, चोट लगी तुरंत मुंह में डाल लिया। मालूम है क्या होता है? इस सलाइवा के अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल जो है एजेंट्स पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि सलाइवा के अंदर ऐसा क्या क्या होता है कि उससे जख्म अच्छा हो जाता है। अब आप बताइए, कभी किसी डॉग को देखा है जिसको चोट लगी हो, वो दिन भर वो अपने जख्म को चाटता रहता है? कभी किसी शेर को देखा है उसको चोट लग जाए, उसको इंजरी लग जाए, कहीं कट जाए फट जाए, वो क्या करता है? उसको चाटते रहता है। लेकिन जिस जहां पर उसकी जबान नहीं पहुंच पाती है वहां पर जख्म उसका अच्छा नहीं हो पाता। जैसे मान लो कुत्ते के सर पे चोट लग गई है और वो जख्म बड़ा है, तो कुत्ता फिर मर जाएगा एक टाइम आने के बाद, क्योंकि वो कुत्ता जो है उस जख्म को चाट नहीं पाएगा। समझ में आई बात? तो जहां पर ये जो जानवर अपने सलाइवा से चीजों को जो है चाट लेते हैं वो जख्म अच्छा हो जाता है। ठीक वैसा ही इंसान, हम भी एक जानवर ही हैं। अगर चोट लग गई, हम अपना निकाल कर सलाइवा ऐसे लगा लेते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हमें इन्फेक्शन से बचाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सलाइवा में थायोसाइनेट एंजाइम थायोसाइनेट होता है, ठीक है, जो कि एंटी माइक्रोबियल होता है। लाइसोजाइम होता है जो एंटी माइक्रोबियल होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है जो कि इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। ये सभी चीजें हैं। तो नेचर ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया। तो ये जो बात है आपको समझ में अच्छे से आ गई, ठीक है। ये डायग्राम आपका बन गया, बन गया। आपने ये डायग्राम को समझ लिया अच्छे से। ये अपर पोर्शन है, ऊपर वाला अपर पोर्शन है, नीचे वाला लोअर पोर्शन है। अब हम एक एक करके, कल हमने आपको क्या बताया था? पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे किसकी? सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करेंगे, ठीक है। दूसरी ग्लैंड है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। द सबलिंगुअल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट, याद रखना इस बात को। ये कौन सी ग्लैंड है बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट है ये। माइक ऑफ कर लें आप लोग। ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। दिस इज द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिलो द टंग, प्रेजेंट बिलो द टंग, ठीक है। एंड इट्स सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन है, इट्स सिक्रीशन contribute 5% of
total secretion of saliva. टोटल सलाइवा का ये 5% ही क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड इसका डक्ट का नाम क्या था, मैंने बताया था, सबलिंगुअल ग्लैंड का डक्ट कौन सा था, बताओ सिद्धार्थ। लक्ष्मी बताओ, सबलिंगुअल ग्लैंड का डक्ट कौन सा है। बोलो सिद्धार्थ, नहीं पता, नहीं पता, डक्ट का नाम नहीं पता, अब बताओ। बोलो बोलो बोलो। रिविनस नहीं है बेटा, रिविनस है, RIVI है, डक्ट ऑफ रिविनस। सिद्धार्थ जवाब दो, तुम बोलो, जब तक बोलोगे नहीं, तुम नहीं बोलोगे मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सर आप क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट कौन सी है। क्या सर? सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट कौन सी है। सर डक्ट ऑफ रेनगस। डक्ट ऑफ रिविनस, चलो ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ कि डक्ट ऑफ रिविनस, माइक ऑफ करें आप लोग। डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस ओपन्स, कहाँ पर ओपन होता है, ओपन्स एट lateral side of frenulum lingua। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो डक्ट ऑफ रिविनस है वो लेटरल साइड ऑफ फ्रेनुलम लिंगुआ के ओपन होता है, ठीक है। लेटरल साइड देखो कैसे याद, ये डायग्राम याद करिए आप, ये डायग्राम याद करिए, ये देखिए, ये आपका फ्रेनुलम लिंगुआ है, ये है ना, और इसके इधर साइड पर एक ओपनिंग ये दिख रही है और एक ओपनिंग ये दिख रही है, दोनों के इधर उधर ये क्या है, सब मैंडिबुलर सैलिवरी डक्ट है। हालांकि ये यहाँ पर इसने थोड़ा सा गलत कहा है, ये गलत है ये वाला, इसकी जगह पर आप लिखेंगे ये सबलिंगुअल, ठीक है, ये इसकी जगह पर आप लिखेंगे सबलिंगुअल, ये होगा आपका सबलिंगुअल। ये डायग्राम में थोड़ा सा गलती कर दिया है इसने, ये सबलिंगुअल है, ठीक है, इसका आप करेक्शन कर लेना। आगे चलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुआ के इधर साइड में ओपन होता है, ठीक है। नंबर तीसरा है आपका जो ग्लैंड है, तीसरी ग्लैंड जो है वो तीसरी ग्लैंड है आपकी सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बेटा ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पर हमने दिखाया है, ये आपका है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये देखिए इधर, यह है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और इसकी जो डक्ट है वो कौन सी है, ये डक्ट है आपकी वॉर्टन्स डक्ट, ये डक्ट आपकी वॉर्टन्स डक्ट है। और ये ओपन कहाँ हो रहा है पता है, अच्छा दांत के बारे में मैंने बताया, ये हमारा क्या है, इंसिजर है, ये हमारा कैनाइन है। तो ये जो लोअर इंसिजर होता है ना, ये जो लोअर इंसिजर है, लोअर इंसिजर के पास आकर के हमारा ये डक्ट ऑफ वॉर्टन्स जो है आकर के ओपन होता है, वॉर्टन्स डक्ट, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। चलो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर लिखेंगे, ये मौजूद कहाँ होता है, प्रेजेंट इन मैंडिबुलर नॉच, प्रेजेंट इन मैंडिबुलर, क्या मतलब होता है मैंडिबुलर का, प्रेजेंट इन मैंडिबुलर नॉच, क्या मतलब होता है मैंडिबुलर नॉच का, नॉच का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन। तो ये जो अपर वाला रीजन दिख रहा है ये क्या है आपका, बताइए, मैक्सिला है, नीचे वाला क्या है, मैंडिबल है, ये जो जबड़ा दिख रहा है ये क्या है, मैंडिबल है। तो मैंडिबुलर नॉच के पास में मौजूद होता है, मतलब ये जो मौजूद है
ये आप देख रहे हो, ये ग्लैंड आपकी, ये यहाँ पर मैंडिबुलर नॉच, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, इधर हमारा मैंडिबुलर नॉच के पास ये मौजूद है। और इसकी जो डक्ट है, ये डक्ट यहाँ से चल करके, यहाँ से चल करके ये लोअर इंसीजर के पास जाकर के ओपन की है और आगे बढ़ करके थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका पॉइंट लिख लीजिएगा। इसका जो डक्ट होता है, इसका जो डक्ट होता है, इसको लिख लीजिएगा। डक्ट क्या है इसका? डक्ट इज कॉल्ड वॉर्टन्स डक्ट, वॉर्टन्स डक्ट। ठीक है, opens just behind lower incisor, opens just behind lower incisor। ठीक है, अब देखिए, it contributes 70% of total salivary secretion, total salivary secretion। ठीक है, देखिए, टोटल सैलिवरी सिक्रीशन का होना अलग मामला है, सैलिवरी एमाइलेज का सिक्रीशन होना अलग मामला है। बात को समझने में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सलाइवा क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। सैलिवरी एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है। ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सलाइवा क्या है? कॉम्बिनेशन है। सैलिवरी एमाइलेज क्या है? सैलिवरी एमाइलेज हमारा एंजाइम है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सैलिवरी एमाइलेज सबसे ज्यादा किस ग्लैंड से निकलता है, तो आपका जवाब होगा पैरोटिड ग्लैंड। क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड। समझ में आई बात? और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम अमाउंट में सैलिवरी एमाइलेज कहाँ से निकलता है, तो आपका जवाब होगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्लियर बात? तो यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन करेंगे, इट ऑल्सो रिलीज some quantity of salivary amylase, some quantity of salivary amylase। ठीक है, इस बात को आप समझते हुए चलिए, some quantity of salivary amylase। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ एक बात और। इसे लिखिएगा पॉइंट, क्योंकि आपको अपनी नोट्स भी मेंटेन करनी है। लिखिएगा, सिक्रीशन ऑफ these 3 pair glands is called saliva। is called the saliva। इन तीनों पेयर ग्लैंड के सिक्रीशन को हम क्या बोलेंगे बेटे? हम बोलेंगे सलाइवा। ठीक है, और अब एक एक पॉइंट मेंशन करिए। डेली सिक्रेशन ऑफ सलाइवा कितना है? 1 से लेकर के 1.5 लीटर पर डे। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह में बनता है। मान लो अगर सलाइवा ना बने तो क्या होगा? वो सूख जाएगा।
अच्छा कभी एक बात बताइए, बड़ी काम की बात मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? लक्ष्मी आप बताना, यस सर। आप बताना मैं जो सवाल पूछ, और हिमांशु आप भी ध्यान दो। आप अचानक से जा रहे हैं बहुत मस्त, कान में ईयरफोन, दोनों कान में ब्लूटूथ लगाए हैं, मस्त वाला गाना सुनते हुए जा रहे हैं। अचानक से एक कुत्ता आया और भौं से कर दिया, है ना? एक सिचुएशन ये होगी। दूसरी सिचुएशन, जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तब। तीसरी सिचुएशन, जब आपने कोई गलती की है और वो गलती का पता आपके पेरेंट्स को लग गया है तब। ये तीनों कंडीशन आपकी कैसी है? इमरजेंसी वाली है कि नहीं? है ना इमरजेंसी वाली कंडीशन? डरावनी। डरावनी इमरजेंसी। तो आप ये बताइए, उस डरावनी कंडीशन में आपके मुंह की क्या हालत होती है? मुंह में खूब खूब सलाइवा बनता है या सलाइवा नहीं बनता? सर बहुत ज्यादा बनता है, हम बार बार। नहीं बनता सर। नहीं बनता है। सच्चाई ये है कि मुंह में सलाइवा नहीं बनता। कहते हैं गला सूख जाता है, घबराहट होती है, मुंह बिल्कुल सूख जाता है, आपको पानी बार बार प्यास लगती है। ये इमरजेंसी की कंडीशन है। मैं आपको रिलेट करूंगा इसको एंडोक्राइन सिस्टम से, इसको रिलेट करूंगा आपके नर्वस सिस्टम से। तो कुल मिला के अगर आपके सलाइवा के सिक्रीशन को अगर हम नर्वस सिस्टम के साथ रिलेट करेंगे, तो हमारे नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे हम क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। बट आप इतना समझिए कि जो हमारा इमरजेंसी वाला सिचुएशन होता है उस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी को नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो जब तीन सिचुएशन जो हमने बताई कि कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपने गलती की और आपके पेरेंट्स को पता चल गया, तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने कि आपके एग्जाम का जब डेट आ जाता है या जब आप एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करते हैं उस वक्त आपका गला खूब सूखने लगता है, और वो तब और ज्यादा सूखता है जब पहला क्वेश्चन पढ़ो और वो ना आए। आप पहला क्वेश्चन पढ़ो और वही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, घबराहट बढ़ जाती है। आपका हार्ट यहाँ नहीं, यहाँ गले में धड़कता है, ठीक है? गले में धड़कता है और खूब खूब जो है प्यास लगती है, आपको गला खूब सूखता रहेगा, बार बार आप पानी पिए, ठीक है? दीज आर द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, एंड इन द इमरजेंसी कंडीशन देयर विल बी दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पर होता है? इमरजेंसी में। और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए, आपकी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए होता है, ठीक है? टू नॉर्मल। अभी आप बैठे हो, मुंह में सलाइवा खूब बन रहा है, ठीक है? अभी मैं आपको होमवर्क दे दूं और आप होमवर्क ना करें, और उसके बाद हमने वही शिकायत आपके पेरेंट्स से कर देनी है, तो पेरेंट्स के सामने जब आप जाओगे तो आपका गला सूख जाएगा, दिल यहाँ नहीं यहाँ धड़केगा, गले में ऐसा लग रहा है दिल बाहर आ जाएगा डर के मारे, हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाएगी, नॉर्मल नहीं फास्ट हो जाएगी, ऐसा आपको सुनाई महसूस होगा कि दिल यहाँ नहीं यहाँ धड़क रहा है, कान में उसके ठक 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 की आवाज सुनाई पड़ेगी। तो दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन। तो इमरजेंसी कंडीशन में हमारा गला सूख जाता है, मतलब वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद बॉडी को नॉर्मल करने के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और हमारे मुंह में सलाइवा खूब बनता है। समझ में आई बात? तो मैंने बताया सलाइवा का जो डेली सिक्रीशन है वो डेली सिक्रीशन आपका 1.5 लीटर से लेकर के 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है, ठीक है जी? तो लगता तो है अब नहीं। क्या कह रहे हो? लगता तो है नहीं कितना होता होगा। बेटा एक दिन इकट्ठा कर लो बोतल में, पता चल जाएगा। पर सर ये यूज तो सर मतलब जब भी होता होगा ना जब खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, माउथ अभी तुम्हारा क्या लुब्रिकेटेड है, तुम्हारा माउथ क्या मॉइस्चर है? हाँ हाँ, तो ये सलाइवा ही सिर्फ सिक्रीट हो रहा है, आप निगलते हो ना, जो थूक निगलते हो आपको पता भी नहीं चलता इनवॉलेंट्री फॉर्म में,
ऐसे किया आपने, निकल गया थूक अपना, आपको पता भी नहीं चलता है। अब जैसे तुम अभी सांस ले रहे हो, 1 मिनट में 12 से 14 टाइम आप सांस लेते हो, 12 से 16 बार आप सांस लेते हो, पता चलता है? गिनती करते हो कभी? कभी आप गिनती करके देखो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं। हमारा दिल 72 बार धड़कता है, हमको पता भी नहीं चलता ऑन एन एवरेज। इस तरीके से सलाइवा का सिक्रीशन पता चलता नहीं है हम लोगों को, सिक्रीशन होता है पता नहीं चलता। उनसे पूछो जो गुटखा खाते हैं, उनको मुंह में भर भर के सलाइवा बनता है। उनका तो सर 1.5 लीटर से ज्यादा आता होगा मेरे हिसाब से। अब आप तुम बताओ कि वो मुंह में गुटखा भरे रहते हैं, भर भर के अपना काम कर रहे हैं। कभी वेल्डिंग वेल्डिंग करने वाले को देखा है तुमने? मुंह में गुटखा लेकर के ये वेल्डिंग जोड़ रहे हैं और मुंह उनका फूलता हुआ चला रहा है, फूलता हुआ चला रहा है, वो ढेर सारा इकट्ठा किए रहते हैं। और फिर उसके बाद जब वो थूकते हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो 250 ग्राम जो है उनका निकलता है। क्या हुआ? हम चलें, ये कह रहे हैं, ये हमारे भांजे हैं, कह रहे हैं कि हमको जहाज दिलाइए, तो हम चलेंगे, इनको जहाज दिलाएंगे। पहले मैं पढ़ा लूं, ये देखो जो भाई लोग बैठे हैं ना, है ना, पहले मैं पढ़ा लूं इन लोगों को, फिर उसके बाद हम चलते। अब आना मत ऊपर, आप जाओ, चलो। बहन का बेटा है। तो बेटा सलाइवा में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। एक चीज और, पीएच मेजर किया था, केमिस्ट्री वाले टीचर आपको बताएंगे, ठीक है? पीएच, पीएच की एक स्केल होती है, ध्यान से सुनना, पीएच की एक स्केल होती है। ये पीएच स्केल जैसे हम मान लेते हैं, ये पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल। यहाँ पर बीचों बीच हम मान लेते हैं कि ये है आपका 7, 7 से ऊपर इधर हम आते हैं, मान लेते हैं ये 14, और इधर हम मान लेते हैं 1। 7 से आगे रहेंगे हम तो ये जो है बीच का, इसको हम बोलेंगे 6, या इसको हम बोलेंगे एल्कली। 7 से अगर मामला नीचे होगा, 7 से मामला नीचे होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे एसिडिक। क्या बोलेंगे? एसिडिक पीएच। और अगर एग्जैक्ट आपका 7 पे ही है, एग्जैक्ट 7 पर है, तब हम इसको बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। तो जो सलाइवा का जो पीएच है, जो हमारी सलाइवा का पीएच है, सलाइवा के पीएच है 6.8। कितना पीएच है सलाइवा का? सलाइवा का पीएच है 6.8। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सलाइवा जो है ये स्लाइटली क्या है? स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक है मतलब क्या? बहुत थोड़ा सा एसिडिक, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा एसिडिक। ये समझ गए आप? पीएच वाला मामला समझ गए? 7 से ऊपर है तो बेसिक एल्कली, 7 से कम है तो एसिडिक होगा। अगर 7 के आसपास में है तो आपका स्लाइटली आ जाएगा, शब्द हो जाता है स्लाइटली। ये लिख लीजिए आप। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट। सलाइवा कंटेन्स, सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, ये बड़ी जरूरी बात है बेटा। सलाइवा के अंदर होता है, पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सलेवरी एमाइलेज एंजाइम। यह है आपका सलेवरी एमाइलेज एंजाइम, पहली चीज। दूसरा इसमें और क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर थायोसाइनेट आयन होता है। क्या होता है? थायोसाइनेट आयन होता है। ये थायोसाइनेट का नेचर क्या होता है बेटा? ये आपका एंटी माइक्रोबियल, ये क्या है आपका? एंटी माइक्रोबियल है। ये एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है? कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करता है। अब आप सोच लो कि अगर मुंह में हमारे सलाइवा ना होगा तो हमारे मुंह में एक नहीं, दो नहीं, आप मिलियंस ऑफ मिलियंस बैक्टीरिया और पैथोजन होते हैं।
जिनको किल कर देता है हमारा कौन, सलाइवा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम भी एक टाइप का एंजाइम है जो एंटी माइक्रोबियल होता है। इसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए। आईजीए का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये जो एंटीबॉडी होते हैं ना आपके, मैं एक्स्ट्रा नोट्स बता रहा हूँ आपको, लिख लीजिएगा। जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इन सब के बारे में हम जब पढ़ेंगे ना ब्लड, तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं, 5 टाइप के क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए हमारे सलाइवा में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे सलाइवा में बहुत ही लिटिल अमाउंट में, इन लिटिल क्या पाया जाएगा, यूरिया पाया जाएगा, इसमें यूरिक एसिड पाया जाएगा। ये सब बड़े लिटिल अमाउंट में पाए जाएंगे। और तो और इसके अंदर पाया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूसिन नाम का एक केमिकल होता है। ये म्यूसिन होता है, और म्यूसिन क्या करता है, म्यूसिन हेल्प टू लुब्रिकेट। लुब्रिकेट का मतलब होता है चिकना बनाना। लुब्रिकेट का मतलब चिकना बनाना। आप रोटी जब खाते हो तो रोटी बाहर कैसी रहती है, रूखी रूखी सूखी सूखी, बिना घी वाली रोटी, हम तो बिना घी वाली खाते हैं। फिर उसके बाद मुंह में चबा करके निकाल के देखो वो रोटी क्या होती है, चिकनी हो जाती है सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, याद करो, है ना। छोटा बच्चा चबाते चबाते जब मुंह से निकाल लेता है, अरे अरे बड़ा खराब लगता है हम लोगों को। यार ये सब हम लोगों ने भी किया था ना बचपन में। मम्मी ने क्या किया, अरे बेटा सही से खाया करो, ये पहुंच दिया, है ना। तो हेल्प, म्यूसिन जो होता है हेल्प टू लुब्रिकेट दी फूड। इस चीज का आप याद रखिएगा, लुब्रिकेट फूड। और अगली बात, इस सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या मौजूद होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब आपके क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। दीज इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं बेटा, बफरिंग इफेक्ट देते हैं, मतलब दे मेंटेन दी पीएच। इलेक्ट्रोलाइट्स गिव buffering effect, that is maintain the pH। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ। नीट का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सब सॉल्व कर लोगे आप। और मैं गारंटी देता हूँ कि टॉपिक खत्म होने के बाद जब आप सवाल लगाने बैठोगे, तो अगर आपने 100 सवाल अटेम्प्ट किए तो 100 में से मुश्किल 5 से 7 क्वेश्चन में डाउट आएगा आपको। वो भी कहाँ पर आएगा, समझने में डाउट आएगा, नहीं तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। इसलिए बहुत आराम से इसको पढ़िए, जो जो चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लो, क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोराइड आयन एक्टिवेट्स द एक्टिविटी ऑफ salivary amylase। जैसे सुबह सुबह आप सोते रहते हो पैर पसार के, पापा कहते हैं जाके अपने लाडले को उठा दो मम्मी से,
मम्मी जैसे ही आती हैं, उठ जा सुबह हो गई है, क्लास नहीं जाना, स्कूल नहीं। जैसे ही मम्मी आई आप तुरंत एक्टिव हो गए। तो मतलब आप हो सेलेवरी एमाइलेज और मम्मी क्या है, क्लोराइड आयन है। तो क्लोराइड आयन ने इस सेलेवरी एमाइलेज को की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, एक्टिव कर दिया। सोते हुए सेलेवरी एमाइलेज को जगा दिया। कौन जगाया? ये क्लोराइड आयन। ठीक है, अब देखो, सब लिख लिया आपने? सर जी बेटा। सर लाइसोसोम और ये आईजीए इसका फंक्शन क्या है? बेटा ये लाइसोजाइम है, लाइसोसोम नहीं है। लाइसोजाइम और आईजीए दोनों आपके क्या हैं? दोनों आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये भी आपका एंटी माइक्रोबियल होता है। ठीक है, ये भी आपका एंटी माइक्रोबियल होता है, क्योंकि ये आगे मैं आपको फंक्शन बताऊंगा कि ये जो लाइसोजाइम होता है बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। जितने भी पैथोजन की सेल वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय करने में ये मदद करता है हमारी। और इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या है? ये हमारा एंटीबॉडी है, हमको इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। एक तो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है, दूसरा इम्यून सिस्टम के साथ कैसा काम कर रहा है, जो भी बैक्टीरिया जो भी पैथोजन आ रहा है उसको मार के किनारे कर दे रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर। चलिए आगे। ये जो आपका सेलेवरी एमाइलेज है ना बेटे, ये जो आपका सेलेवरी एमाइलेज है, ये सेलेवरी एमाइलेज दो टाइप का होता है। इन जनरल मैं बता रहा हूँ। एक होता है आपका अल्फा सेलेवरी एमाइलेज और एक होता है हमारा बीटा सेलेवरी एमाइलेज। ठीक, एक अल्फा सेलेवरी एमाइलेज और एक बीटा सेलेवरी एमाइलेज। वी ह्यूमंस, हम क्या है, ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस के अंदर जो सेलेवरी एमाइलेज होता है वो अल्फा वाला होता है, और जो दूसरे रूमिनेंट्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उनके अंदर जो एमाइलेज होता है वो आपका बीटा सेलेवरी एमाइलेज। तुम जाओ यार। जहाज जहाज जहाज। देखिए अल्फा सेलेवरी एमाइलेज present in humans, present in humans, and beta salivary amylase जो होता है ये आपके रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स का मतलब होता है जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब जो जानवर होते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं, जुगाली करने वाले। उनके अंदर बीटा सेलेवरी एमाइलेज पाया जाता है। और बीटा सेलेवरी एमाइलेज का दूसरा नाम मालूम है क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है सेल्यूलेज। अब आप देखिए यहाँ पर सेलुलोज में क्या लगा है, सेल्यूलेज एज लगा हुआ है। और जिस भी वर्ड के आगे सफिक्स के फॉर्म में एज लगा हो तो समझ जाइए ये क्या है, एंजाइम है। तो अगर ये सेल्यूलेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइजेस्ट करेगा किसको, ये डाइजेस्ट करेगा सेल्यूलोज को। भाई अगर हमको घास खिला दिया जाए तो हम घास डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि घास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, बीटा सेलेवरी एमाइलेज चाहिए। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
The release of saliva is, जो हमने आपको बताया, induced by parasympathetic nervous system. Induced by the parasympathetic nervous system. अगर मान लीजिए आपके माउथ से पैरासिम्पैथेटिक का जो कनेक्शन है काट दिया जाए तो क्या होगा? जवाब दो। बहने लगेगा सर। कहाँ बहने लगे? ज्यादा अमाउंट में निकल सकता है। मैंने क्या कहा? काट दिया जाए। मैंने ये नहीं कहा उसको और बढ़ा दिया जाए, नहीं। मैंने कहा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप देख रहे हो, इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर हमने कट कर दें, डिनर्वेट कर दें, तो क्या होगा? मैंने कहा कि ये इंड्यूस करता है। इंड्यूस करने का मतलब होता है बढ़ाता है। इंड्यूस करने का मतलब होता है बढ़ाना। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके सलाइवेशन को बढ़ाता है। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही हमने कट कर दिया तो अब ये बढ़ेगा ही नहीं, मतलब ये इंड्यूस ही नहीं होगा, तो सलाइवेशन ही नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में। इफ buccal cavity is denervated, किससे डिनर्वेटेड कर दिया हमने? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिनर्वेटेड। देन क्या होगा कि पहली कंडीशन क्या पैदा होगी? पहली कंडीशन ये होगी कि आपका माउथ कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, क्योंकि अब सलाइवा बनेगा ही नहीं। और ड्राइनेस ऑफ माउथ को क्या बोलते हैं पता है? जीरो स्टोमिया। मैंने कहा इसको जीरो स्टोमिया कहते हैं। अब देखो आप लोग अब नए नए शब्दों से मिल रहे हो, तो जीरो स्टोमिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये देखो इधर, ये जीरो स्टोमिया वर्ड है। इस वर्ड को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट इज द जीरो स्टोमिया? ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, मैं मान लिया। दो वर्ड से मिलके बना है बेटे, ध्यान देना। एक वर्ड है यहाँ पर जीरोस, जीरो, और एक वर्ड है यहाँ पर स्टोमिया। जीरो वर्ड आया है कहाँ से पता है? जीरो वर्ड आया है जीरोस से। जीरोस का मतलब होता है डेजर्ट। और स्टोमिया वर्ड आया है कहाँ से? स्टोमा से। स्टोमा का मतलब होता है माउथ। और जहाँ डेजर्ट होता है वहां पर नो वाटर। जहाँ पर डिजर्ट है वहां पर नो वाटर, मतलब माउथ में नो वाटर। जब माउथ में कोई वाटर नहीं है, माउथ में अगर वाटर नहीं है तो कंडीशन क्या आ जाएगी? ड्राइनेस ऑफ माउथ। इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो स्टोमिया। और तो और जीरो स्टोमिया ड्राइनेस ऑफ माउथ का मतलब क्या हो गया? देयर इज नो सलाइवेशन। देयर इज नो सलाइवेशन। और एक कंडीशन और यहाँ पर पैदा होती है, क्या है? जरा सा लिखिएगा।
अब जब माउथ में सलाइवेशन ही नहीं होगा तो माउथ के अंदर जो जर्म्स हमारे एंटर किए हुए हैं वो सारे जर्म्स हमारे माउथ के ऊपर अटैक करेंगे, हम दांत को खराब करेंगे और दांतों में कैविटी बनना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डेंटल कैरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? दांत काढ़ा खा गया है इसका भैया, दांत काढ़ा खा गया है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है जो आपका दांत काढ़ा ना खाए, है ना? इसके अलावा मैंने पढ़ा कि ये डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का अप टू 30%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीरोस्टोमिया कंडीशन आ जाएगी तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ carbohydrate to some degree get affected ठीक है। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट योर सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे दूसरे ग्लैंड के बारे में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग इसके प्रॉपर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, सिक्रीशन के बारे में पढ़ लेंगे। तो कल तो डाउट क्लास है, 3:30 से 4 की क्लास रहेगी आपकी, तो आप लोग जो भी डाउट्स हैं आप पूछने आ जाना आपको, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टुडेज लेक्चर यू मे आस्क। नो सर नहीं है। सेशन को ओवर किया जाए फिर। हाँ ओके बेटा, बाय बाय।